दोपहर के सत्र में। Okay, so why don't we just start by just looking to the Lord and let's start praying in tongues for some time. और कुछ समय हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। I just want you to pray strong, pray intensely, and just talk to the Lord at this time. और हम परमेश्वर से बातें करें सामर्थ के साथ, प्रभु की ओर ध्यान लगाते हुए। Come on, let's just lift up our voices. हमारे आवाजों को उठाकर and loud enough so you can hear. और हम ऊंची आवाज में प्रार्थना करें ताकि हम अपनी आवाज को सुन सके, एक प्रभु की महिमा के द्वारा होने के लिए। And I just want to request even the online students to do that, please. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Give us the strength, Lord. Give us the wisdom, Lord. Let there be a deposit of your word in our hearts, Lord. Let your word change us, Father God. Change our perspective, change our thinking, Lord. Let faith rise in us, O God, even as we pray. Let every work of the enemy, O Father God, be just broken down in the mighty name of Jesus. We just call out every stronghold to come down in the mighty name of Jesus. Yes, Father God, thank you. Father, we thank you, Lord, for this afternoon time that you've given us, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के समय आपने हमारे लिए प्रदान किया। And Spirit of God, we thank you that you have a plan and purpose for each one of us. और पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम प्रत्येक के जीवन में आपके उद्देश्य को हमें दिया। Yes, Lord, I pray that even as we look into your scriptures, I pray that you will teach us, Father God. प्रभु जी, हम जब आपके वचनों को देखते हैं, ध्यान करते हैं, आप हमें सिखाइए। Let your light bring, oh Father God, Lord, enlightenment to us and dispel all the works of darkness. प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति पर खुदावन जय पाने के लिए और खुदावन आपका प्रकाशन हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We just pray and ask, oh God, that you would anoint us afresh this afternoon. और हम प्रार्थना करें दोपहर के वक्त परमेश्वर की ताजगी आत्मा के द्वारा प्राप्त करने के लिए। Yes, Lord, we give you all the praise and all the glory at this time, प्रभु जी, Lord. सारा प्रशंसा, आदर, महिमा आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के अद्भुत नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. As we look into God's word and we study God's word, और जब परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और उसमें से हम सीख भी पा रहे हैं, right? It changes the way we look at different things, right? और परिस्थितियों को बदलता है जब हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं। I'm sure right from day one, the first day that you started till now, और पहले दिन से अभी तक हम देखने पाते हैं बदलाव को। You might have changed the way you looked at certain things. और ऐसे चीजों को आप अपने जीवन में देखे हैं और उन चीजों को बदलते हुए आपने अनुभव किया है। Your thoughts about God may have changed. हो सकता है परमेश्वर के प्रति आपका सोच में परिवर्तन आया हो। Your thoughts about yourself may have changed over the months. आपके जीवन में आपकी जो सोच है आपके प्रति उसमें भी बदलाव आया हो। Right? So, and that's what happens when we encounter the word of God. और ये सब जब होता है, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जब उसका सामना होता है, जब उसके साथ हमारा आमना सामना होता है, our thinking changes. और सोचे बदलाव के लिए, and our conviction changes. और हमारा जो अंगीकार उसके द्वारा परिवर्तन को ला सके। So when that changes, the way we live also changes. और जब हम इस बात को सोचते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका में भी बदलाव आता है। So it changes for the better. और बदलाव इसलिए कि एक अच्छा होने के लिए। Right, and that's why we study the word of God. इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। So all through this course, we've been studying the word of God on different topics. और हम अलग-अलग परमेश्वर के वचन के द्वारा
अलग अलग विषयों पर हम सीखते हैं या अध्ययन करते हैं, And so it changes the way we think about these topics. और जिसके द्वारा हमारा तरीका और सोच में बदलाव आता है, And therefore, the way we live also changes. और जब हम हमारे जीवन जीने का तरीका में भी परिवर्तन को हम देखने पाते Okay, हैं। so as we study about money and finances, और जब हम वित्तीय और आमदनी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, we start thinking in line with God's word about money. और हम सोचते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And so the way we live and the way we interact about money, that also changes. और जब हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है और जब हमारा आकर्षण जो रुपये पैसे के प्रति वो तरीका भी हमारे जीवन में हम बदलाव को देखते हैं। Right? So yesterday we looked at some very important things. और कल के दिन हमने महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। We looked at how God treats money or how God considers money and prosperity. और कैसे परमेश्वर उस संपन्नता को करता है और पैसे को भी कैसा व्यवस्था प्रबंधन करता है। We also studied about some of the men of God whom God blessed. और हमने उन लोगों के बारे में कल देखा, व्यक्तियों के बारे में जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया। So when you ask the question, who blessed them, it is God himself. अगर प्रश्न हम पूछते हैं कि किसने आशीष दिया, और वो परमेश्वर ने आशीष दिया, उसका So उत्तर ये है। God who blesses them also blesses us. जिस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दिया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है और संपन्न बनाता है। So if we had in our minds a thought that God does not want to bless me, that changes. अगर हम इस प्रकार हमारी सोच है कि परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर सकता, संपन्न नहीं बना सकता, वो सोच को हमें बदलने की आवश्यकता है। Right? So yesterday we also looked at some people who fell because of money. और कल के दिन हमने देखा कि कुछ लोग हैं पैसों के मोह के कारण वो गिर गए थे। Right? They got hold of greed and because of which they fell. और कारण उनके अंदर कारण ये था कि लोभ और लालच आने के कारण। So today let's look at one more person or two more people in the New Testament where Paul writes and he says, this person, he left the ministry, strayed away from the faith in order to serve himself. और बाइबल के नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे पैसे में गिरने के कारण उन्होंने उस सेवा से अलग हो गए या अपने आप को वहां उनके जो साथ चलते थे उस सेवा से हटा दिए गए। We see this in 2 Timothy chapter 4 and verse 10. और दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। It's a man by name Demas. और उसका जो नाम है देमस के नाम। Now Demas was actually part of Paul's ministry team. और जो देमस जो नाम व्यक्ति था वो एक सेवकाई में भागीदारी था। Right? He was traveling with Paul. और वो पौलुस के साथ यात्राओं को कर रहा था। And he would go and do the ministry along with Paul and others. और देखते हैं कि पौलुस के साथ उसने सेवकाई को किया और उसके साथ जाता था। Right? But in 2 Timothy 4 verse 10, this is what Paul writes about Demas. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 10 पद में पौलुस लिखता है। He says, Demas has forsaken me. और वहां लिखा है कि देमास ने मुझे छोड़ दिया। Which means he left the team, he just went away. इसका मतलब यह है कि उसने जो समूह में था, टीम में था, टीम को छोड़कर वो अलग चला गया। And this is the reason why he left the team. और कारण क्या था वो टीम को, समूह को छोड़ने का? He says here, Demas loved this present world and has departed. और वहां पर वो कहता है कि वो संसार को उसने प्रिय जाना जिसके कारण उसने अपने आप को छोड़ दिया। Which means he loved the world more than he loved God or the ministry. इसका मतलब यह है कि उसने परमेश्वर से ज्यादा, सेवकाई से ज्यादा उसने संसार से प्रेम किया। We studied yesterday that when we love money or when we go after have desire for riches more than we love God, then there's always a problem. और कल के दिन हमने सीखा अगर हम रुपये पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए परमेश्वर से ज्यादा अगर उन चीजों पर प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा खतरा है और हमारे लिए नुकसानदायक है। There is a tendency to stray away from the faith. इसका मतलब ये उसका हमारे अंदर ये विचार आता है कि हम अपने आप को छलनी करते उस विश्वास में या पीछे हटा लेते हैं। And so the same thing has happened here. और यहाँ पर वही बातें
इस जीवन में देखते हैं। Now, I देवास just want to tell us that when we stray away from God because of money or because of anything, it's a gradual process. और मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम इस परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम संसार की बातों में या रुपए पैसे के पीछे भागते हैं, और ये देखा जाता है अक्सर लोगों के जीवन में इस प्रकार होता है। You know, this man Demas, he was serving along with Paul and Timothy and others. He was in the part of the ministry team. और देमास के बारे में देखते हैं कि वो पौलुस के साथ सहकर्मी था और साथ साथ सेवा को करता था। वहां पर तीमुथियुस के साथ भी हम देखते हैं। So he didn't wake up one morning and say, okay, I don't want to serve now. और एक दिन सुबह उठकर वो कहता है कि नहीं, मैं सेवा नहीं करूंगा। It was a gradual process. और ये एक लगातार होने वाली बातें हैं। You know, if you turn to Hebrews chapter 2 अगर इब्रानी की पत्री उसका दूसरा अध्याय and verse 1, उसका पहला वचन, okay, this is what it says. और यहाँ पर इस प्रकार बताया गया It है। says, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. इस कारण हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक उनमें से दूर चले जाए। Right? So this drift away, it means it is something that happens gradually. बहक चले जाने का मतलब ये हमेशा होने वाली बातें हैं। Day by day, हर दिन, minute by minute. समय पर समय। Right? How many of you have, you know, maybe if you have a cycle or a bike, you woke up one morning and you wanted to go somewhere and you found that the bike has a flat tire. और कितने लोग के पास साइकिल और मोटरसाइकिल है, और आप सुबह उठकर अचानक आपको गाड़ी लेकर कहीं जाना है, तो आप सुबह उठ देखते हैं कि उसका टायर पंचर हो गया, हवा नहीं है इसमें। Right? So the air didn't escape all at once. It happened through the night. और एकदम से उस पहिए के हवा नहीं निकलेगा, लेकिन पूरा रात भर उसको लगा धीरे धीरे हवा निकलने के Right? लिए, It was a slow leak. और धीरे से उसमें से निकलना। So when we drift away from faith, it is a slow process. It happens day by day. विश्वास से हम जब विश्वास में होता है, हम बहकर चले जाते हैं, इसका मतलब धीरे धीरे वो चीज होता है विश्वास में से हटने का। And so the Bible warns us that we should be careful and to retain those things that we have heard, lest we drift away. परमेश्वर का वचन हमें उस बात से सचेत करता है कि हम उन बातों पर मन न लगाए, बल्कि सावधान रहे ताकि हम बहकर दूर न चला जाए। Right? So the same thing happens with money. और रुपये पैसे के साथ भी, You know, we start earning or we start, you know, accumulating more and more money. और हम पैसा कमाते हैं और हम अधिक पैसा कमाने के भी सोचते हैं। You know, slowly we begin to put our faith in money than in God who gives us money. और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विश्वास को हम पैसे पर आधार बना लेते हैं या उस पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम परमेश्वर से भी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। Right? You remember the verse that we read yesterday, 1 Timothy chapter 6 verse 17. और हमने पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 पद में हमने कल के दिन पढ़ा था। Right? He says, don't put your trust in uncertain riches. और हमने इस प्रकार पढ़ा था कि हम कुछ दूसरी ऐसे व्यर्थ बातों पर हमारा मन न लगाए, But put your trust in God who gives us richly all things to enjoy. और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो उदारता से हमें हमारे जीवन में वो प्रदान करता है। So this is something that we need to learn. और हम इन बातों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। You know, next we are going to look at this topic, which when we look at these verses, it shows us that God blesses us, God blesses man materially and with finances. परमेश्वर भौतिक आशीष एवं आर्थिक आश्चर्य कर्म को प्रदान करता है। You know, many times we think very spiritually. कई बार हम आत्मिक तौर से हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, And we think that God only blesses us spiritually. इस प्रकार हमारे सोच होती है कि परमेश्वर केवल हमें आत्मिक तौर से ही आशीष करता है। If you need money, we need to do other things, but then if we need spiritual blessings, we can always go to God. That's what we think. पैसा अगर कमाना है तो हमें उसका दूसरा रास्ता अपनाना होता है, लेकिन आत्मिक तौर से आत्मिक बातों में जो बढ़ते हैं तो परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की हमारे अंदर सोच होती है। But when we look into the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, we see that God
is someone who blesses us with material things, with और finances. देखते हैं कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से भी वो आशीषित करता है। You know, we're going to look at a few examples. कुछ उदाहरणों को हम बाइबल में से You देखेंगे know, the first person that we read about is this man called Obed-Edom. और हम पहला व्यक्ति है उसके बारे में देखेंगे, ओबेद एदोम के बारे में। Right. So the ark of God was with the Philistines. और फलिस्तियों के पास वो संदूक जो था परमेश्वर का। Okay, did we all learn about the ark of God? क्या Ark of the covenant? क्या आपने परमेश्वर के संदूक, वाचा के संदूक के बारे में सीखा? Yeah. Okay. In praise and worship, you would have learned. आपने स्तुति आराधना के विषय में आपने सीखा होगा। Okay. So there was this ark which the Philistines carried away from the Israelites. और देखते हैं कि Took away. ये जो वाचा के संदूक को फलिस्तीनियों ने इस्राएलियों से लेकर उनसे वो लेकर वो चल पड़े। Right. But it was creating a lot of problems for the Philistines. और वहां देखते हैं कि फलिस्तीन में बहुत सी समस्याओं का उत्पन्न उन्होंने किया। Right. The ark represented the power of God. In fact, it was the presence of God. जो संदूक था परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की उपस्थिति का वो वहां पर प्रकटीकरण को करता है। So wherever the Philistines took the ark in their country, in their nation, there were a lot of strange things happening. और देखते हैं कि जब जब फलिस्तीनियों ने उस संदूक को उठाया और जहां जहां ले गए वहां पर बड़े अद्भुत कामों को उन्होंने देखा या उसका अनुभव किया। Right. When they kept the ark into the temple, the idol would fall down and break. जैसे उन्होंने उस संदूक को मंदिर में रखा, वहां पर देखते हैं कि जो मूर्तियां थी वो गिर पड़ी। There were all kinds of skin conditions that the people suffered from. और देखते हैं कि शारीरिक चर्म रोगों से लोगों से प्रताड़ित किए गए या उनके शरीर में उनका अनुभव को उन्होंने देखा। Right. So they had enough of the ark of the covenant and they said, okay, we don't want it, please take it back. और जब वो उस संदूक को लेकर जाते थे तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्होंने कहा कि इस संदूक को यहाँ से हटा दिया So जाए। David went along with the men, soldiers, and then he wanted to bring it back to his city. और हम वहां पर देखते हैं कि दाऊद अपने लोगों के साथ जाकर अपने शहर में उसको वापस लाने के लिए उसने तैयारी But किया। something happened, there was an accident. और लेकिन वहां पर देखते हैं एक दुर्घटना वहां पर घटी। And because the ark of God was not handled correctly, one person died. और देखते हैं कि वहां वो जो संदूक को जो लेके आना था और उस संदूक वहां सही रीति से उसको संभाला नहीं गया, इसके कारण वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। So nearby there was a house. और उसके पास में एक घर था। And this man, Obed-Edom, it was his house, he lived there. और जो उस घर में ओबेद नाम का व्यक्ति रहता था। And so they said, okay, let's put the ark of the covenant in his house. और इस प्रकार की योजना बनाई, ठीक है, ये जो परमेश्वर का ये वाचा का जो संदूक है ओबेद के घर में रखा जाए। So they left and then they put the ark of the covenant there and they left. और वाचा का संदूक को उसके घर में रख दिए और वो लोग चले गए। Now the ark of the covenant represented the presence of God and it was indeed the power of God. और जो वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वायदा का प्रतिनिधित्व करता है। So let's read this verse. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 6 verses 10 to 12. दूसरा शामिल की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 से 12 पद तक। Okay, can somebody read it please in Hindi? में से कोई मदद करे पढ़ने के लिए हिंदी में। और Next verse also, verse 12. 12 पद भी। Okay. So something supernatural has happened there. और यहाँ पर अलौकिक काम को हम देखने पाते हैं। Obed-Edom, there was a change in his life after the ark of the covenant was brought into his house. ओबेदेद का जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर का वाचा का संदूक जब उसके घर में आया, उसके जीवन को बदलते हुए देखने पाते हैं। The ark of the covenant, how long was it there in the house? और उसके वो वाचा का संदूक कितने सालों तक उसके यहाँ था? Right? 3 months, right? 3 महीने।
And so, in those 3 months, और उन 3 महीनों के दिनों में people started noticing something. और लोगों ने कुछ बातों को वहां पर देखा, ध्यान किया। Now, it says here, the Lord blessed Obed-Edom and all his household. और यहाँ पर लिखा यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने को आशीषित किया। Now, we don't know what kind of blessing, और हमें नहीं मालूम किस प्रकार की वो आशीष थी, but they were blessed. लेकिन वो आशीषित हुए। Verse 12, 12 पद, it says that people started going and telling King David. और लोग राजा दाऊद के पास जाकर उस बातों को बता रहे थे। What did they tell him? क्या बोले उन्होंने? They went and said, God has blessed Obed-Edom. और उन्होंने कहा कि ओबेदेदोम को परमेश्वर ने आशीषित किया है। And they made the connection. और उन्होंने संपर्क को बनाया। They said, hey, it is because of the Ark of the Covenant. कारण ये कि उस वाचा के संदूक के द्वारा। Right? So they saw some noticeable change. और देखते हैं कि कुछ बातें जो देखी गई बदलते हुए। Obed and his family, they are happier. ओबेदेदोम के जो परिवार उसका आनंद को पाते हुए और आशीष को पाते हुए। Right? We're talking about all kinds of blessings, right? और वहां पर हर प्रकार की आशीष के बारे में बताया गया है। Maybe they had no kinds of sicknesses. और हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार की बीमारी ना हो। Maybe they lacked nothing. और उनके पास हो सकता है कि जो कुछ नहीं था वहां पर सब कुछ उन्होंने पा लिया। Right? All the needs were met. जो कुछ जरूरतें उनकी थी उन्होंने प्राप्त किया। Maybe they had even more to give others also. हो सकता है कि दूसरों को अधिक देने के लिए उनके पास पर्याप्त। So the people वस्तु saw मिली। that. So the people saw that. लोगों ने उस बात को देखा It was something that they could see with their eyes. और उन्होंने कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखा। And it was so different. The change was so drastic that they had to go and tell the king. और उन्होंने जो देखा बिल्कुल अलग हटके थी और जाके दाऊद राजा से उस बात को बताया। Right? Just think about it. सोचिए इस बात For को। somebody to go and tell the king, और कोई व्यक्ति जाकर राजा से बात कर रहा है, that person is being blessed. उसका मतलब वो व्यक्ति भी वहां आशीषित है। And we found out why he was blessed. क्यों वो आशीष को उसने पाया? It was because of the Ark of the Covenant. क्योंकि वाचा का संदूक उसके घर में होने The का। Ark of the Covenant where the presence of God was और dwelling. वाचा का जो संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बनी रहने के कारण। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? That means that God's heart is to bless. अब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हृदय वो आशीष को देना चाहता है। God's nature is to bless people. परमेश्वर का जो स्वभाव ये है कि वो लोगों को आशीषित करे। And therefore, that is what happened. और इसके कारण ये सब होता है। And so, David immediately, he says, okay, I need that ark now. तब दाऊद कहता है तुरंत कि अब वो संदूक मुझे आवश्यक है। We need to bring it here to the city. और अपने शहर में उसे वापस लाना है। So they bring back and they put a tent. और उन्होंने वापस लेके आया, उसके लिए तंबू बनाया। And they start to worship God. और वहां पर उन्होंने आराधना प्रारंभ की। They begin to worship God 24 hours, 7 days a week. और पूरे 7 दिन 24 घंटा वो परमेश्वर की उन्होंने आराधना Like वहां पर different की। people would come every 2 hours to lead in worship, to sing songs and to worship the Lord. और अलग अलग लोग अलग अलग समयों पर आकर उन्होंने आराधना को वहां पर किया। And many of the psalms that we read were written during those times. और हम देखते हैं भजन संहिता को उस समय काल में कुछ भजन को लिखा गया। So this teaches us something, यहाँ पर कुछ बातें हमको सीखने को मिलती है। that the presence of God and God's nature is to bless. परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, वो आशीष को देना चाहती है। Right? Yes, he is a holy God. हाँ, वो पवित्र परमेश्वर है। Yes, he cannot tolerate unrighteousness. और वो जो धर्मी नहीं है उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। But it's also true लेकिन ये बात सत्य भी है that our God is the one who blesses. और हमारा वो परमेश्वर है जो हमको आशीष को देना चाहता That's है। his heart. वो उसका हृदय है And it's the heart of the Father और वो पिता का हृदय उसका है wanting to bless his children. और वो चाहता है कि अपने बच्चों को आशीष दे। Okay, let's look at one more person. हम एक व्यक्ति के बारे में और So we देखेंगे read about Elisha और एलीशा के बारे में in 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। Okay, so there was this widow और वहां पर देखते हैं कि विधवा के बारे में। and she had 2 sons. और उसके 2 पुत्र थे। And so
she said, I have no money, and the person from whom I borrowed money is coming to take away my sons. और या मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग क्या करना है, मेरे बच्चों को लेने आने वाले हैं. Okay, so he said, tomorrow the person from whom I borrowed the money is coming, and Yeah. since I don't have any money, he's going to take away my sons. अगर मैंने बीते दिनों में कुछ रुपये पैसे को उधार लिया था, अब क्या होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उस उधारी को लेने के लिए आ रहा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर उस उधारी को नहीं पूरा करूंगी तो मेरे पुत्र को वो लेके चले जाएंगे. So Elisha instructs her something. और एलिशा ने कुछ निर्देश को दिया. What do you have in the house? तुम्हारे घर में क्या क्या चीज है? And she says, I have nothing but a jar of oil. बस मेरे पास कुछ तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो बर्तन में तेल है. So Elisha says, go borrow vessels from everyone. और क्या करो, तुम क्या करे, सब आसपास जाके सभी जगह से तुम बर्तनों को इकट्ठा कर लो. And when you go back home, और जब तुम वापस घर जाओगे, you close the door, दरवाजा बंद करना, take this jar of oil, और उस जो तेल का बर्तन को लेना, and you pour it into all the vessels that you have borrowed. क्या करना, जितने बर्तन तुमने लेके आए उन सारे बर्तनों में तेल को डालना. So she starts doing that. और उस स्त्री ने प्रारंभ किया उस कार्य को करने के लिए. Something supernatural happens. लेकिन वहां पर एक अलौकिक आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं. The Bible says that all the vessels were full of oil, were filled with oil. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे बर्तन पूरे रीति से तेल से भर गया. From one jar of oil, केवल एक तेल का बर्तन के द्वारा, that jar of oil filled all the vessels that were brought. उस तेल के बर्तन के द्वारा जो बर्तन उन्होंने आसपास से लेके आए लोगों से, वो सारे भर गए. And so this lady asks the son, bring me one more vessel. और वो स्त्री अपने बेटे से कहती कि और बर्तन लेके आओ. So the son says, there's no more vessels. वो कहता है कि अब कोई बर्तन बाकी नहीं रहा है, We have filled everything. हमने सारे बर्तनों को भर दिया है. And this is what we read here in verse 6. और हम 6वें पद में हम पढ़ते हैं, So the oil ceased. और वो देखते हैं कि वहां पर बर्तन तो वहां पर है कि वहां बर्तन तो नहीं है, और तेल भी वहां पर खत्म हो गया, Right? There was no more vessel, and then the oil ceased. वहां पर बर्तन नहीं होने के कारण देखते हैं कि वह तेल भी रुक गया. So she goes to Elisha and says, hey, this is what happened. और वो स्त्री जाकर एलिशा से बोलती है, देखो इस प्रकार का काम हुआ है. And so Elisha tells her, go and sell the oil and repay all the debt. The money that you borrowed, you repay it. एलिशा उस स्त्री से कहता है कि अब क्या करो, उस तेल को ले जाकर बेच दो, जो पैसा मिलता है उससे जो तुमने उधार लिया उसे लौटा दो. So when you read this, जब आप पढ़ते हैं, what do you understand about God? क्या परमेश्वर के बारे में आप समझते हैं? क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में? Anyone? What do you understand about God? Just one thing you tell me. एक बात को बताएं. Somebody from there? उधर से. What is that one thing that you understand about God when you read this? आप ये इस वचन को जब पढ़ते हैं, कौन सी बातें समझ में आते कि परमेश्वर कौन है? Okay, God does the supernatural work. Thank you. Anyone from here? What else? और क्या करता है? His nature is to bless people. Okay. और कोई? Anyone from the last row? Yeah. पीछे से. God is trustworthy. Okay. Yeah. Anyone? He is? Right. True to his name, Jehovah Jireh, so he provides. Yeah. Anyone from here? इधर से. God who delivers, right? So we learn so much about the nature of God, about the heart of God, because he's the one who's causing this miracle. और हम यहाँ पे परमेश्वर के उस हृदय को, स्वभाव को, और हम देखते पाते हैं कि वो परमेश्वर जो है कि वो देने वाला परमेश्वर है. Right? And we understand that he's a God who gives generously. और इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि हमारा परमेश्वर उदारता से देने वाला परमेश्वर है. Right? Because some people can give, they give, but they give hesitatingly. और कुछ लोग देते हैं, हिचकिचाहट के साथ देते हैं. Sometimes maybe you go and ask someone, hey, I need to borrow some
something. Maybe I need to borrow some vessel or something from you. अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि भाई मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, मुझे कोई सामान खरीदना है, Maybe, for example, you want to borrow somebody's vehicle, somebody's bike. मान लीजिए आप किसी की गाड़ी या बाइक आप आपके कार्य के लिए लेना चाहते हैं, So they look at you up and down, right? और आपको ऊपर से नीचे देखते हैं, And they say, it's a new bike. अरे ये तो कहता है कि नया गाड़ी है मेरा, कैसे दूंगा मैं? See, that person is a friend, right? वो उसका खास दोस्त है, They say, it's a new bike. अरे ये तो नया गाड़ी है भाई, And also petrol is less. और एक बात और है कि पेट्रोल भी इसमें कम है, I don't normally give it to others, और मैं वैसे तो किसी को देता तो नहीं हूं मैं, but to you I'm giving you. अच्छा ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ, But please bring it back in 20 minutes. और क्या करना, वापस 20 मिनट के अंदर वापस दे देना मुझे। Okay, and they are very, very hesitant. They're saying, no, please be careful. And also, whatever petrol you use, please refill it and then bring it back. और बड़े हिचकिचाहट के साथ वो दे रहा है कि आप कहता है कि पेट्रोल कम है और नई गाड़ी है और जल्दी लेके आना, उस बात को बड़ा उससे कह रहा है वो। And so you're thinking, why did I even ask this person? तब आप सोचते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से क्यों पूछ लिया, Right? I should have asked someone else. इससे बेहतर होता कि मैं दूसरे से मांग लेता I गाड़ी। wanted to go and ask for help, but then I feel so bad now. मैंने अपनी सहायता के लिए मांगा, लेकिन मैं यहाँ पर उसको एक बुरा महसूस हो कर रहा है। But our God is not such a person. हमारा परमेश्वर इस प्रकार का सोच वाला परमेश्वर नहीं है। Because this verse says the oil stopped because there was not another vessel. और यहाँ पर देखते हैं तेल रुक गया, कारण ये था कि क्योंकि दूसरा कोई बर्तन वहां पर नहीं था। Which means that if there were more vessels, the oil would have still continued to pour out. इसका मतलब है अगर और बर्तन होता तो लगातार तेल उस बर्तन में भरते जाता। Okay. Right? In Romans chapter 8, and I think it's verse 32, it says that God who did not even, who gave his son for us. और वहां पर हम देखते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32. उसका 32 पद हम देखने पाएंगे। It says God who did not even consider, but then he gave his son for it. Let me just read that verse. उस वचन को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। Okay, it says, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। Right? God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। And Romans 8:32 also says, he did not spare his own son, and how shall he not with him also freely give us all things? 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए उसने दे दिया। So God is a God who blesses. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें आशीष को देता है। Okay, one more example. एक और उदाहरण, And this is in the New Testament. और ये नए नियम में पाया जाता है। Okay, this is when we read Luke chapter 5. जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय को जब पढ़ते हैं, And I think you may have read this many times. और आपने कई बार आपने उस वचन को पढ़ा है। Okay, now Simon Peter and his team, they fished all night. They didn't catch anything. और देखते हैं कि समोन जो पतरस अपने मित्रों के साथ रात भर मछली को पकड़ा था, लेकिन उन्होंने प्राप्त नहीं किया। But then Lord Jesus says, लेकिन यीशु मसीह ने जब उनसे कहा, you go into the deep and you again put down your nets. और उस गहरे में जाल को डालो। And so Simon says, Lord, we have actually, tried all night. We did not get anything. और वो इस प्रकार कहा कि हम रात भर तो हमने परिश्रम किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। But because you're saying this, लेकिन I will put down the net. आप कहते हैं इसलिए मैं जाल को डालता हूँ। So what happened? क्या हुआ वहां पर? When they put the net, what happened? जब जाल को डाला क्या हुआ? Right. It's not just one or two, but it says that they got a great number of fish. और उन्होंने केवल 1-2 मछली नहीं पकड़ी, लेकिन बहुत सारी मछली पकड़ी, यहाँ तक उनकी जाल भी फटने लगी। They got so much that the net was breaking. और उनके पास इतना अधिक मछली हो गया कि उनके जाले भी फटना शुरू हो गई। Can you just imagine that? आप सोचिए। Right? Just think about Simon Peter. आप सिमोन पतरस के बारे में सोचिए। Whole night he's been putting the net, only taking the net out empty. और पूरी रात भर जाल को डाले रहे
और उन्हें सुबह तक कुछ नहीं मिला। But now, under the instruction of the Lord, he puts the net, and the net is almost breaking because it's full of fish. अभी यहाँ देखते हैं कि केवल यीशु की उस पर प्रभु की आज्ञा को मानकर उसने डाला और जाल पूरे मछलियों से भर गई और यहाँ तक कि फटने लगी। It was so much that they called their partners in the other boat. They said, "Hey guys, come help us." और इतनी सारी मछलियां थी, उन्होंने क्या किया, आसपास दूसरे जो नाव में बैठे हुए उसके मित्र थे उनको बुलाया कि मेरी सहायता करो। And so they filled both these boats. और उन्होंने उन जहाजों नाव को भर दिया। You know, if you look at Luke chapter 5 and verse 7, और लूका का 5 अध्याय उसके जब 7 पद को हम देखते हैं, it says the boats also began to sink. और देखते हैं कि जो उनके साथियों ने वहां पर नाव देखते हैं कि वहां पर नाव भर गई और डूबने लगी। Right? It was so much. बहुत सारा होने के कारण। So that also teaches us something about God. और यहाँ पर भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। So what does fish mean to Simon Peter? और समौन पतरस के लिए मछली का अर्थ क्या था? Huh? नहीं. Simon Peter was a fisherman. साइमन जो पतरस था वो मछली पकड़ने वाला था। So he catches fish. और वो मछली पकड़ रहा। Now, what does this fish mean to him? और उस मछली का मतलब उसके लिए क्या है? Yeah. So for him it is money. उसके लिए वो रुपया था, क्योंकि आमदनी उसी से करता था वो। Because this is his livelihood, this is work. क्योंकि उसका वो काम था, उसका जीविका था उसका। And so he needs to take it to the market and sell it and get money. और बाजार में बेचकर उसके द्वारा उसको जो पैसा मिलता। So what did God bless him with? तो परमेश्वर वहां पर देखते प्रभु उसको किस बात से आशीषित करना चाह रहा था? What did God bless him with now? प्रभु परमेश्वर अब किस बात से उसको आशीष दे रहा है? Finances, right? Money. पैसा, रुपया। What did God bless the widow woman whom Elisha spoke to? What was she blessed with? अब देखते हैं कि विधवा स्त्री को परमेश्वर ने किस प्रकार उसको आशीषित किया। Yeah. So God is not allergic to money, or he doesn't. It's not like he blesses only spiritual things. परमेश्वर ने केवल आत्मिक बातों के द्वारा हमें आशीषित करता है। ऐसा परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमें भौतिक चीजों को भी देता है। God blesses us with material things. भौतिक चीजों से भी हमें आशीष देता है वो। Okay. So money, in other words, is not bad. और जो रुपया दूसरे शब्दों में देखे वो गलत नहीं है। How many of you think money is bad? कितने लोग सोचते हैं कि रुपया पैसा गलत है करके? कितने लोग सोचते हैं? Right? So money is not bad. पैसा गलत नहीं है। We all need money. हमें रुपये पैसे की आवश्यकता है। We all use money. हम उन रुपये पैसे का इस्तेमाल करते हैं। In fact, we also worship the Lord with our tithes and offerings. और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर को दशमांश भेंटों को चढ़ाते हैं। When we are meeting in the church, when we are worshiping the Lord, we give our offering. और जब कलीसिया में एक जगह इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए भेंटों को भी चढ़ाते हैं रुपये पैसों के द्वारा। We are acknowledging, Lord, you are my provider, and we are worshiping the Lord with our tithes and और offerings. इस बात को हम एहसास करते हैं कि परमेश्वर हमारा उपाय करता है, वो दशमांश So there's no problem. There's no problem with money. ये पैसों के साथ समस्या नहीं है। But there is a problem with us if we allow money to hold us. लेकिन वो समस्या हमारे अंदर है जब हम रुपयों और पैसों से जब प्यार करना शुरू कर देते हैं। Right? Because we can have a false sense of security because of money. और वहां पर देखते हैं झूठी असुरक्षा को हम देखने पाते हैं जो पैसे रुपयों के द्वारा होता है। And that is what the Bible warns us about. और ये बातें जो है परमेश्वर उसके उन बातों के लिए हमें सचेत करता है और सावधान करता है। So let's look at that verse, 1 Timothy chapter 6 and verse 17 again. और अब फिर से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17 पद। Okay, can somebody read it, please? क्या कोई एक जन पढ़ेंगे? Command those who are rich in his presence, is not in hungry, not to trust in uncertain riches, but in his living God, who gives us richly all things to enjoy. Okay, right? Somebody can read it in Hindi, please. हिंदी में कोई पढ़े?
Okay, so it's very clear. Don't be proud because of money. और हम रुपये पैसे के कारण अभिमानी ना हो। Okay? If you have riches, don't be proud because of it. और अगर हम धनवान हैं, धनी अमीर है, बहुत अच्छी बात है। If you have riches, don't put your trust in the riches. अगर आप धनवान है, आपकी धनवानता में अभिमानी ना बने। Okay? Yesterday we looked at that whole incident of demonetization that happened. और हम देखते हैं कि जो जिस पैसों के प्रति जो वहां पर लोभ लालच के बारे में देखते जो लोगों के जीवन में हुआ, Right? The value changed from 2000 to 0 overnight. और हमने नोटबंदी के बारे में देखा कि जिस प्रकार 2000 का नोट 1000 का नोट बदलते हुए। Right? And so it is uncertain when it comes to riches. और ये जो बातें जो चंचलता के द्वारा होती है, But God is one who never changes. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। So we can put our faith in Him. हम क्या करना है, हमारा विश्वास उसके ऊपर लगाना है या उस पर रखना है। And from this verse we learn that the living God, He gives us richly all things to enjoy. और क्या करना है कि परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है ताकि हम उसमें कुशल रहे और आनंद को मना सके। Right? So we understand that yes, God is not against me enjoying my life. इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, हम जो अपने जीवन में आनंद को जो मनाते हैं। God is not against meeting our needs with money. परमेश्वर उस बात से विरोध नहीं करता जब हमारी जरूरतों को जो पैसे की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में पूरा होते देखते हुए। You know, in the Matthew's Gospel, the Lord Jesus says, "For God the Father knows that you have need of these things." और परमेश्वर पिता जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, But He says, "Don't worry about these लेकिन things. कहता है कि तुम इन बातों की चिंता नहीं करना। Food and clothing and shelter. अपने खाने के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में और रहने के बारे में, Don't worry about these things." इन बातों की चिंता नहीं करना। Right? So we understand that God is a God who provides for us, who blesses us with material things. और इस बात को ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है, भौतिक चीजों से हमें वो आशीषित करने वाला है। Okay, so any questions कोई प्रश्न आपके पास based on what we heard so far? Any questions at अभी all? तक जो हमने सुना उस विषय के आधार पर कोई भी प्रश्न? Okay. No questions. Okay. So next topic, we're going to look at something which is even more wonderful. और हम अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे विषय को हम देखेंगे जो बहुत ही अद्भुत हमारे लिए। We are looking at God's guarantee to bless His people. और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को संपन्न बनाने की प्रतिज्ञा करता है। What is a guarantee? प्रतिज्ञा क्या है? If you buy, let's say, some gadget, maybe some pressure cooker, मान लीजिए आप कोई सामान या क्या बोलते कोई कुकर, आप प्रेशर कुकर को खरीदते हैं, right? It comes with a guarantee, उसमें वहां पर लिखा होता है गारंटी के बारे में, right? For maybe 2 years, 3 years, there will be no repair, nothing. और उसमें लिखा रहता है कि 3 साल, 2 साल, 1 साल कि उसमें कोई आपको उसमें सुधार करने का, उसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं। Right? So the manufacturer has given us the guarantee. और जो बनाने वाला का उसमें उसको प्रतिज्ञा करता है और गारंटी देता है उसका। Right? You understand that? उस बात को समझ गए आप? So in case something bad happens to the pressure cooker, you can always take that card and go, "Hey, you said nothing will happen, something has happened, please give me another piece." अगर कुकर में कुछ खराबी आती है तो क्या करते हैं, हम उस कार्ड को लेकर दुकानदार के पास जाते हैं और उस कहते हैं कि देखो आपने कहा था ये, और उसको हम जाके देते हैं। So the question is, can we be confident that God wants to bless us and God's heart is to prosper us? क्या आप भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा या संपन्न बनाना चाहता है? क्या भरोसा है? Because if we have that faith, क्योंकि हमारे पास वो विश्वास है, it will free us from all kinds of fear. It will liberate us from all kinds of fear. और सारी बातों जो डर की बातें हैं, जो वो डर की बातों से वो हमें आजाद रखता है। वो Fear about tomorrow. कल के बारे में डर, जो डर कल के बारे में, Fear about the future. भविष्य के बारे में डर Oh, what will happen? कि हमारा क्या होगा, How will I manage? कैसे मैं इसका प्रबंध करूंगा, How will I manage the bills? कैसे मैं बिल को जमा करूंगा, How will I manage the expenses? कैसे मैं खर्चा को बनाए रखूंगा। If we know for sure
अगर हम उस पर हमारा भरोसा नहीं है, that God does want to bless me, परमेश्वर हमें आशीष को देता है, then all kinds of fear will go. सारे डर हमारे अंदर से दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। Because this faith in God will drive out all kinds of fear. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ये सारी बातें हमारे अंदर से निकल जाती है, दूर चले जाती है, So we will live a different kind of life. और हम एक अलग जीवन को जीने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। It will be a faith-filled life, इसका मतलब यह है कि एक विश्वास योग्य जीवन, not a fear-filled life. डरा हुआ जीवन या भय का जीवन नहीं। You know, in the ministry of the Lord Jesus, यीशु मसीह के सेवकाई काल में हम देखते हैं, there was this man who went and asked him, Lord, you heal my son. और एक व्यक्ति वहां पर गया और कहता है कि आप मेरे पुत्र के चंगाई को मैं मांगता हूं। And the Lord Jesus asks a very pertinent question. और वहां पर प्रभु एक विशेष बात को या उससे प्रश्न करता है। The Lord asks, do you believe that I am able to do this? और उसे कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं उसे चंगा कर सकता हूं? What did that man reply? उस व्यक्ति ने उसको क्या उत्तर दिया? He said, Lord, I believe. हाँ प्रभु, मैं विश्वास तो करता हूं, Help my unbelief. लेकिन मेरे अविश्वास की मदद करिए। Right? And in another place, दूसरी जगह हम देखते हैं, this one says, Lord, I believe whatever you want to do, you can. और मैं विश्वास करता हूं आप जो चाहेंगे वो आप करेंगे। So what was that man saying? तब वो क्या वहां पर क्या कहा गया? Right? I forget the exact reference, but he says, Lord, if you are willing, I think it's about the leper. He says, if you are willing, you can make me clean. और वहां शायद हो सकता कोड़ी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, अगर तू चाहता है मेरे जीवन में चंगाई को देना, Right? If you are willing. अगर आप चाहते हैं। Let's find out that verse. उस वचन को हम देखेंगे, Um, ढूंढेंगे कहां पर है, किसी को अगर मिलता है तो बता सकते हैं। if you, it is Matthew 8 and verse 2, right? मत्ती 8 अध्याय उसका 2 पद। Okay, it's very interesting. We will read that verse. और बहुत ही रोचक वचन है वो। Okay, Matthew chapter 8 and verse 2. 8वां अध्याय उसका 2 पद मत्ती का। Okay, it says, so the leper came, worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और कोड़ी उसके पास आकर से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। What was he saying? वो क्या कह रहा है वहां पर? He believed in the Lord's ability. परमेश्वर की योग्यता पर उसने भरोसा किया। I know you can. हाँ, मैं जानता हूं कर सकते हैं, I know you have the ability. आपके पास योग्यता है, But I'm not sure if you are willing. और लेकिन मैं इस बात से वो अच्छा उस बात से मैं भरोसा नहीं है कि आप में हो सकता है करके मेरे जीवन में। If you're willing, the will of God. अगर आप चाहेंगे, परमेश्वर की इच्छा हो तो। Right? So, what is the difference? इस दोनों में अंतर क्या है? He's saying, I know that you have the strength, you have the power, मैं जानता हूं कि आपके पास योग्यता है, सामर्थ है, but I don't know whether you want to. और मैं इस बात को नहीं जानता कि क्या आप कर पाओगे। You understand? What, sorry? Yeah. Right? So I don't know if you want to, if you are willing to heal me. अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। So many times we are like that. कई बार हम इसी प्रकार होते हैं। I know God can. परमेश्वर कर सकता है, You know, God can bless that person. God can, परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष दे सकता है, but I'm not sure if He is willing to do that for me. लेकिन मैं अपने आप में इतना भरोसा मेरे अंदर नहीं किया। आप चाहे तो, I don't know if He wants to do it for me. आप चाहे तो क्या अब हो सकता है मेरे लिए। Right? I know that the Bible says that He is the provider. He is Jehovah Jireh. और मैं जानता हूं कि आपको परमेश्वर उपाय करने वाला है, But I don't know if He wants to provide for me. क्या आप चाहते हो कि मुझे आप उसका प्रबंध करें। Okay, so that is what we are going to study. और हम उन बातों को हम अध्ययन करने पाएंगे। How can we be confident? कैसे हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, How can we be sure कैसे हमारे अंदर वो भरोसा आएगा that it is God's will to कि bless and prosper us? कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो संपन्न करें
और हमारे जीवन को आशीषित करे। Okay, so let's take a break and we'll come back. और हम ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे।